morning, everyone. So, yesterday I was discussing about Article 1 of the Indian Constitution, and we were going with Union and its territory. So, today also I'll be completing where I have left. So, I welcome you all to an academic platform. Okay. So, before starting my topic, let us talk something about an academy. An academy. Okay. So, now you see, crack all crack all UPSC optional with us, that is India's largest learning platform, and get the subscription of it. Once you get the subscription of it, you see you will get what are the benefits which you are getting. You will be getting daily live classes, and in this daily live classes, you will be chatting with the educators, you'll be engaged with the discussions, asking doubt and answer poll. Okay. So structure courses, there are altogether 15,000 plus structure courses. Okay, and in this 15,000 structure, these all are well arranged. Live test and quiz are also there. Live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of the learner before going to give the exams. They can evaluate themselves. Not unlimited accessibility. Unlimited accessibility literally means that if you fail to get daily live classes, if you fail to get daily live classes, so you see you will be getting recorded class. You'll be getting recorded course. Okay, and you see, download this Unacademic Learning app through Google Play and App Store. I have completed graduation from Calcutta University in science subjects, and I have done MA in public administration. I am acting as a mentor for UPSC civil service for 11 years, last 11 years and so in public administration, polity and governance in different states. I have appeared for UPSC civil service interview twice, and I have served many reputed IAS coaching institutions in Delhi and many more states. Under my guidance, many aspirants have cracked UPSC civil service as well as many state level exams too. Along with me, there are top 100 educators. You see, along with me, there are top 100 educators, and you can see the in this slide, you can see the name of you top educators who will be nurturing you to fulfill your dream. You see, there are more than 15,000 plus courses are available, and in this 15,000 plus courses, you see polity, governance, geography, science and tech, history, optional, environment, ecology, current affairs, So these are the only few examples. These are only few examples. Okay, these are only few examples. There are many more courses, and as you know that these courses cannot be completed in 1 day, 1 month, 3 month, or 6 month. So it's better to get the subscription of 12 months because Unacademy provides two types of courses. One is plus course and one is iconic courses. So in this plus course, you see, in this plus course, for 12 months, you see 49,500 is the fees. And if you apply my promo code, that is SDMD or MDYT, if you apply my प्रोमो कोड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट. अगर आप मेरा प्रोमो कोड अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. दैट इज SDMD और MDYT. So you have to pay. You will pay 44,550. 44,550. And for 12 months, you see 72,000 fees. And for 12 months, you see if you apply my promo code MDYD and SDMD, you will get 10% discount. So 64,800. 36 month. For 36 month, you see 90,000 is the fees, and 90,000 fees. If you apply my promo code MDYT or SDMD, you will get 10% discount, and you have to pay 81,000 rupees. So you see, then you come to iconic courses. This iconic courses, why iconic courses fees is different? Because these are the things you will be getting it extra. These are the things which you will be getting it extra. So in this things, again, you see for 12 months, the fees is 69,500. But if you apply my promo code SDMD, SDMD or
MDYT, you'll get 10% discount. You'll get 10% discount. So for 12 months, if the fees is, so it will be reduced to 62,550. Again, for 24 months, if you see the fees is 1,07,000, so 24 months, the fees is 96,300 if you apply my promo code MDYT or SDMD. Okay. And for 36 month, you see 1,41,000 is the fees. And if you apply my promo code, that is MDYT or SDMD, you will get 10% discount and you have to pay 1,26,900. 1,26,900. So these are the benefits and these are the fee structure. It will be differ once you apply my promo code. So don't forget to apply my promo code MDYT or SDMD. Okay, now yes, as yesterday we were discussing about union and territories, and I do discuss about all these things, name and territory. That is four. We also discussed that why it is India and why it is Bharat. Okay, and we also describe what is the meaning of the union of states and why we don't have territory. And we also discuss about the destructible India is the destructible nation of the destructible state. So that also we have discussed, and there are many new issues related to it that also will come to know. So we have also discussed about this federations, that why India is not a true federations. Okay, and reasons for the true federation is that also I have said that is why India is a semi-federal or quasi-federal. Professor Casey Ware has said that India is a quasi-federal, whereas the Supreme Court of India also describe it a federal structure with a strong bias towards center. That means that also we have described yesterday. Now today we were discussing about territory of India, and in territory of India, yes, I have also discussed about what is the difference between Union of India and territory of India. And I have said that in this Union of India, it will include only 28 states, but in territory of India, it will include 28 states plus 8 union territories plus other state which India acquired, plus other states which India acquires. Okay, so this is what we have about the territory of India. Okay, now we come to union territories. Like as I have discussed yesterday only, that why do we don't, and you see here the word union includes 28 states. So who has coined the word union? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था, तो जो वर्ड यूनियन ऑफ इंडिया है उसको किसने कॉइन किया? ओके, उसको किसने कॉइन किया? सो द यूनियन वर्ड हैज बीन कॉइन्ड, द यूनियन वर्ड हैज बीन कॉइन्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर. और जब उन्होंने ये यूनियन वर्ड कॉइन किया, तो उनका कहने का उस दौर के टाइम में मतलब कुछ और था. क्यों? क्योंकि इंडिया को सबसे पहले यूनियन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया जो है, देयर वाज मेनी प्रिंसली स्टेट, अप्रोक्सीमेटली 600 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एट दैट टाइम. तो आप देखिए कि अगर 600 प्रिंसली स्टेट एट दैट टाइम है था, इफ देयर वाज 600 प्रिंसली स्टेट, तो आप खुद देखिए कि ये जो 600 प्रिंसली स्टेट है, जी 600 प्रिंसली स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 600 प्रिंसली स्टेट है अप्रोक्सीमेटली थे, दैट वाज इन एंड अबाउट 565 में. तो इनको इंटीग्रेट करना अपने आप में बहुत चैलेंज था. तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये यूनियन वर्ड कॉइन किया, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग था. ओके, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था. इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनियन वर्ड कॉइन किया, और यूनियन वर्ड कॉइन करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि ये जो मैं यूनियन वर्ड कॉइन कर रहा हूं, दिस इज बिकॉज कि पूरे जो प्रिंसली स्टेट है, ये सब यूनाइट होके फॉर्म करेंगे यूनियन ऑफ इंडिया. दे ऑल विल यूनाइट एंड दे विल फॉर्म यूनियन ऑफ इंडिया. Okay, so that is why he says this is the meaning of union. So Dr. Bhimrao Ambedkar का union words का coin करके बताना, you see उस वक्त के टाइम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर how far sighted he was. उनकी जो मतलब दूरदृष्टि थी वो कितनी अच्छी थी कि उन्होंने फ्यूचर का देखकर कहा कि दिस इज व्हाट
कैन बी डन। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझ के यूनियन ऑफ इंडिया कॉइन किया। क्यों? क्योंकि यूनियन इंडिया का मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट, और उस प्रिंसली स्टेट्स को वो जोड़ना अपने आप में एक बहुत चैलेंज की बात थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू सी, दैट इज व्हाई ही सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने वर्ड यूनियन कॉइन किया। सो नाउ यू सी वी कम टू यूनियन एंड टेरिटरीज। ओके, सो अब देखिए, जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जस्ट नाउ आई हैव सेड दैट Union of India includes only 28 states. You see, only the state which has federal features. Only the state which has federal features. Only a state which has federal feature, that is 28 states. But territory of India का जब हम define करते हैं, when we define territory of India, you see, पहले तो union territories भी आ जाएगी इसके अंदर. That means it includes states, that is 28 states, union territories, that is plus 8 union territories, and third one is such other territory as acquired by India, यानी ऐसी कोई other territory जो इंडिया acquire कर रही है, such other territory as acquired by India, as acquired by India. Okay, तो हम जब बात करते हैं सच अदर टेरिटरीज की, तो सच अदर टेरिटरीज एज एक्वायर्ड बाय इंडिया. सो अब देखिए, इंडियन यूनियन टेरिटरी सिंस 1987 से लेकर अभी तक टिल 2000 till 2020, you see we have 8 union territories. Earlier 7 था, अब 8 हो गया, और 8 में आप देखिए यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, एंड दमन एंड द्वीप को क्या किया गया है कि एक कर दिया गया. दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप दोनों एक कर दिया गया है. और लद्दाख हैज बीन फॉर्म्ड एज न्यू यूनियन टेरिटरी. लद्दाख हैज बीन फॉर्म्ड एज न्यू यूनियन टेरिटरी. ओके, लद्दाख जो है वो न्यू यूनियन टेरिटरी फॉर्म किया, एंड जम्मू एंड कश्मीर आल्सो बिकम्स अ न्यू यूनियन टेरिटरी. ओके, जम्मू एंड कश्मीर आल्सो बिकम्स अ न्यू यूनियन टेरिटरी. तो ये जम्मू, जब दमन एंड द्वीप यहाँ जुड़ गया तो 7 में से 6 हो गए, 2 और नया खुल गया, दैट इज लद्दाख, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर, यू सी, तो ये जो 2 नई टेरिटरी आ गई हैं, ये 2 नई टेरिटरी 2019 में इसको लाया गया 5 अगस्त को. ये 2 नई टेरिटरी जो लाई गई हैं, ये न्यू टेरिटरी. अदरवाइज इससे पहले आपके पास दिल्ली था, ये अंडमान निकोबार आइलैंड था, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़. ओके, नाउ सी, so any territory which may at any time be acquired by India by purchase, हमने उसे खरीदा हो, ट्रीटी से किया हो, एग्रीमेंट किया हो, या उसके ऊपर आक्रमण करके किया हो, will obviously forms a part of the territory of India. Will obviously forms the part of the territory of India. जी हाँ, and that will form the part of the territory of India. Then, so that is why we talk about this Article 1. And Article 1 में this is the difference between Union of India and territory of India. Union of India and territory of India. This is what the difference is. Okay, तो अब देखिए, जब टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब उसके बाद देखिए आर्टिकल 2. that is admissions or establishment of new states. ये देखिए यहाँ पे एस आपको दिखना चाहिए कि कैपिटल दिया हुआ है.
नोटिस करना, मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंट्री, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में हम वर्ड एस यूज कर रहे हैं तो ये कैपिटल हो जाता है, और स्मॉल जब हम बात करते हैं तो ये स्टेट के लिए बात करते हैं। स्टेट का मतलब देयर आर 28 स्टेट्स, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे कैपिटल स्टेट है। सो न्यू स्टेट्स पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन, या तो वो उसको यूनियन में ज्वाइन कर सकता है, यानी उसे एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दे, और established new state on such term and condition as it thinks fit। यानी ये पूरी राइट्स हमारे जो संविधान सभा के जो लोग थे, देखिए वो लोग कितने फार साइटेड थे, कितना एडवांस थे, और कितना आगे तक का सोचे थे उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो आर्टिकल 2 है, दैट इज स्टेट्स के बारे में, तो इन्होंने क्या किया था कि कहा कि फ्यूचर में अगर इंडिया कोई स्टेट को एक्वायर कर रही है, इन फ्यूचर इंडिया एक्वायर्स एनी स्टेट, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, इफ इंडिया एक्वायर्स एनी स्टेट, ओके, और उसको इंडियन टेरिटरी में कैसे रखना है, किस हिसाब से रखना है, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय नन अदर देन पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट डिसाइड करे कि कैसे करना है और कैसे रखना है। वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड, ये हम लोग के मतलब इट्स प्योरली गिवन राइट्स टू दी पार्लियामेंट। ये सारी राइट्स जो हैं ये पार्लियामेंट्स को दे दिया गया कि पार्लियामेंट विल डिसाइड कि क्या करना है और क्या नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट व्हेन वी से अबाउट यूनियन ऑफ टेरिटरी एंड दिस एडमिशबल, दैट इज एडमिशबल और एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या हो, ये मत समझिएगा आप लोग कि हम लोग ये नई कंट्री की बात कर रहा है। प्लीज ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी आर्टिकल 3 आएगा तो उसमें इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ये नई कंट्री की बात कर रहा है, न्यू कंट्री। और जब ये न्यू कंट्री की बात कर रहा है तो प्लीज थिंक इन दिस वे दैट व्हेन इट टॉक्स अबाउट न्यू कंट्री, तो ये न्यू कंट्री का मतलब हो गया कोई भी फॉरेन कंट्री अगर भारत एक्वायर कर रहा है तो ये पार्लियामेंट को राइट दिया गया कि वो कैसे करेगा। ओके, नाउ पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट, this expression further means that new state may be admitted in union in the following means and ways। यानी you see parliament may by law admit, यानी इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, what does it say, this is the biggest point and we need to think in this way। This expression further means that a new state may be admitted in the union in the following ways। यानी अगर ये बाय लॉ एडमिट का मतलब ये होता है कि कैसे हम इंडियन यूनियन में उसको एडमिट करें, कैसे हम उसको इंडियन यूनियन में एडमिट करें, और ये पार्लियामेंट कैसे करेगी, दैट इज वेज एंड मीन्स, तरीके क्या है। लेट अस सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 2A। देखिए आर्टिकल 2A जो था, ये सिक्किम को पहले हम लोगों ने क्या किया था, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था, बट और सिक्किम जो है वो हमारा अपना पार्ट नहीं था, चाइना के साथ उस वक्त टेंशन चल रही थी, तो चाइना ने क्या किया कि उस सिक्किम स्टेट को भारत में दिया, और सिक्किम के भी रेफरेंडम कराए गए, तो मोर देन 95% पीपल्स दे सेड कि दे वांट टू गो विथ इंडिया। तो एज अ रिजल्ट, तो 1975 से पहले, 36th अमेंडमेंट से पहले आप देखिए सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट्स का दर्जा दिया गया था इंडिया में। एसोसिएटेड स्टेट का मतलब है कि भारत के साथ जुड़ा रहेगा, एसोसिएट रहेगा, बट वो भारत का अंग नहीं है। और इस लॉ को रिपील कर दिया गया बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। क्यों कर दिया गया है 1975 में? क्यों? क्योंकि इसी एक्ट अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह घोषणा कर दिया कि सिक्किम इज नाउ नो लॉन्गर इज द एसोसिएटेड स्टेट, इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट।
ओके, यानी सिक्किम जो है ये एसोसिएटेड स्टेट नहीं है, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। और आपको बता दें कि इस एसोसिएटेड स्टेट के वजह से इंदिरा गांधी द्वारा उस वक्त क्या किया गया था, 10th शेड्यूल लाया गया था। इस 10th शेड्यूल को भी रिपील कर दिया गया। यस, इस 10th शेड्यूल को भी हटा दिया गया। जी बिल्कुल, अगर आप नोटिस करेंगे तो इस 10th शेड्यूल को भी इसी 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब जो 10th शेड्यूल है, उन्हीं इंदिरा गांधी के लड़के राजीव गांधी ने बाय 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में डाला गया। 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में डाला गया। ओके, सो दिस आर्टिकल इज रिपील्ड येट, अभी तक ये रिपील किया हुआ। अब तो सिक्किम हमारा अपना अंग बन गया, तो अब हम लोग सिक्किम की स्टोरी को सुनते हैं कि क्यों सिक्किम भारत का एसोसिएटेड स्टेट था और सिक्किम को कैसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया अपने में। द स्टोरी ऑफ द सिक्किम बिकेम a state of India is relevant, so we need to discuss here. हमें इसे, सिक्किम was being ruled for more than 300 years by चोगलियास, यानी चोगलियास जैसे वहां का मोनार्की था। चोगलियास वहां का मोनार्की था और चोगलियास जो है, आप देखिए चोगलियास की अगर हम बात करते हैं तो चोगलियास वहां का मोनार्की था और वहां का राजा था और 300 साल से वो रूल कर रहा था। उसकी हिस्ट्री अगर जानिए तो हमें 300 साल की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। इंडिया, when 1947 when India became independent, a popular vote in Sikkim rejected joining India, यानी चूंकि राजशाही थी और राजाओं को तो आपको पता ही है कि वहाँ राजा जो चाहेगा वही प्रजा करेगी। तो वहां पे क्या हुआ कि वोटिंग के अकॉर्डिंग, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग राजा ने कहा कि वी डोंट वांट टू गो विथ इंडिया ज्वाइनिंग एज इंडियन यूनियन, हम इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। हाउएवर चोगलियास दी उनके दी तशीन नगलियान was successful in getting a special status, the protector फॉर सिक्किम। और ये जो राजा थे, इन्होंने क्या किया, ये हटा दे बीच में, इन्होंने क्या किया कि सिक्किम को बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे से प्रोटेक्टर फॉर सिक्किम स्पेशल स्टेटस इन्होंने ले लिया। दिस वाज इन फेस ऑफ स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल पार्टीज लाइक सिक्किम स्टेट कांग्रेस who wanted a democratic setup and access of Sikkim to India, यानी वहां की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो चाहती थी कि हम भारत के साथ आए। परंतु ये जो चोगलियास था, ही वाज, अगर इंटरनली देखा जाए तो ही वाज बैक्ड अप बाय चाइना। चाइना इसको बैकअप किया था और जिसके वजह से क्या था कि जब ये चाइना ने इसे बैकअप किया था तो ये रीजन बना था कि इन्होंने भारत से प्रोटेक्टर फॉर सिक्किम स्पेशल स्टेटस का दर्जा ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि द ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड सिक्किम रेक्टिफाइंग द स्टेटस ऑफ सिक्किम एज अ प्रोटेक्टर विद चोगलियाम एज अ मोनार्की। अब जब उसी वक्त से आप देखिए इंडिया को एसोसिएटेड स्टेट्स का दर्जा दे दिया गया, यानी भारत सरकार के साथ ट्रीटी साइन हुआ और सिक्किम में रेक्टिफाई किया गया बिटवीन इंडिया एंड सिक्किम, रेक्टिफाई द स्टेटस ऑफ सिक्किम एज अ प्रोटेक्टर एंड चोगलिया एज अ मोनार्की किंग, यानी मोनार्की किंग का मतलब कि अब उसका जो वंश होगा वो उसका लड़का, मतलब हेरिडेटरी, नाउ दे विल बी एक्टिंग एज अ किंग। तो चोगलियाम तसाल नगलाम डाइड इन 1963, इन्होंने, ये मर गया 1963 में, उनका जो राजा था वो मर गया 1963 में, and was succeeded by his sons Paldan, sorry, Paldan
टोंडब नगलिया, अब ये उसे सक्सेस किया। सो बाय द बिगिनिंग ऑफ 1970 तक there was resembling in a political rank and file of status which demanded the removal of monarchy and establishment of democratic setup। यानी 1970 तक, देखिए अभी वो जस्ट 5-7 साल ही हुआ था, तो उसके ही मतलब सिक्किम स्टेट में लोगों ने पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन मतलब जो लोग चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ मोनार्की ना होके हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी हो। ओके, हमारे यहाँ मोनार्की ना होके हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो। ओके, और इसके वजह से क्या हुआ कि विच डिमांड, और उन लोगों ने डिमांड किया कि अब ये जो राजशाही है इसको खत्म किया जाए। वी डोंट वांट राजशाही, वी वांट डेमोक्रेटिक सेटअप इन। क्यों? क्योंकि अब जब वो चोगलियान राजा मर गया तो चाइना का ये जो ग्रिप है यहाँ पे, इट स्टार्टेड लूजिंग अप। वेट अ मिनट, इट स्टार्टेड लूजिंग अप, लूजिंग अप। अब इसके वजह से क्या हुआ कि और भारत सरकार ने भी कुछ इंटरनली मूवमेंट को प्रमोट किया कि हाँ वहां पे डिमांड करो कि मोनार्की खत्म करके डेमोक्रेटिक आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। और एज अ रिजल्ट इट हैपेंड, thus finally culminates a widespread agitation against सिक्किम दरबार इन 3 साल के अंदर ही देखिए सिक्किम में क्या हुआ कि भयंकर कहा जाए कि मूवमेंट एक लॉन्च किया गया कि हमें डेमोक्रेटिक चाहिए। और जैसे महात्मा गांधी आए थे तो महात्मा गांधी ने एजिटेशन किया, करवाया, अपने साथ मूवमेंट लॉन्च करवाया जिसके मास मूवमेंट हम कहते हैं ना, उसी तरह से वहां भी बहुत बुरी तरह से क्या हुआ, एजिटेशन स्प्रेड हो गया। और 1973 में आप देखिए कि वहां एजिटेशन चालू होता है। एजिटेशन एक दिन में चालू नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। 70 तक लोगों ने कहा कि आप पोलाइटली हटे, नहीं हटे, तो 73। सो हाउएवर देयर वाज अ कंप्लीट कोलैप्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन सिक्किम, यानी सभी लोगों ने, सभी लोग जो थे वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर लिए कि हाँ हमें भारत के साथ जाना है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया। तो चोगलियाम, the Chogyals was proving to be extremely unpopular with the people, और उनका लड़का जो था वो ज्यादा पॉपुलर, उतना पॉपुलर था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। उतनी पॉपुलैरिटी नहीं होने के वजह से, कम यंग एज होने के वजह से पीपल डिड नॉट लाइक इट। और यही वजह था कि जब चोगलियान जो इसके फादर थे, इसके साथ ट्रीटी जो हुआ था, तभी उस वक्त भारत ने कहा था कि सिक्किम इज एन एसोसिएटेड स्टेट। सिक्किम इज एन एसोसिएटेड स्टेट। चुगलियाम उसी वक्त कह दिया था कि सिक्किम इज एन एसोसिएटेड स्टेट। अब देखिए 1975 में कादिदी प्राइम मिनिस्टर इन सिक्किम, वहां भी होता है प्राइम मिनिस्टर, अपील टू द इंडियन पार्लियामेंट फॉर द चेंज इन सिक्किम स्टेटस। कौन सी स्टेटस की बात की जा रही है, प्लीज जरा बता सकते हैं आप लोग? आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल एकदम दिल खोल के आप लोग टाइप करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या चीज समझ रहे हैं और क्या नहीं समझ रहे हैं। ओके, आप बिल्कुल टाइप करें। सो यू सी सिक्किम, सिक्किम स्टेटस सो दैट इट कुड बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया। यानी ये किस स्टेटस, तो ये उस स्टेटस की बात कर रहे हैं जो एसोसिएटेड स्टेटस का दर्जा मिला था। दैट इज इंडिया और सिक्किम के बीच, प्राइम मिनिस्टर के बीच, मतलब उनके महाराजा मोनार्कियल किंग चोगलियांस और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच जो साइन हुआ था ट्रीटी, उसमें उनको प्रोटेक्टर का स्पेशल स्टेटस, मतलब प्रोटेक्टर्स और सिक्किम का दिया गया था। यानी अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करेगा तो इंडिया उसको प्रोटेक्ट करेगी। जैसे भी चाइना, सॉरी जापान को ले लीजिए आप, कि जापान इज अंडर द अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसए, और अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसए पे है जापान। ओके, तो अब देखिए अब क्या हुआ कि तो इंदिरा गांधी देन एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज वेरी पॉपुलर। और 1971 में ये देखिए, ये इशू ऐसे नहीं हुआ जो एकदम अचानक से हो गया।
1970 में मूवमेंट लॉन्च हुआ, 1903 में एजिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसका कारण था क्यों? क्योंकि 1991 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, ईस्ट पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कर लिया था, ईस्ट पाकिस्तान को फोर्सफुली सरेंडर करना पड़ा करवाई, और उसके बाद उसे बांग्लादेश का नाम दे दिया। जी, ये सारे इंसिडेंट वो देख रहे थे कि इंदिरा गांधी इज नाउ द पावरफुल लीडर ऑफ इंडिया। और अब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर 19 से, और इंडिया में तो खैर उस वक्त इमरजेंसी था। इन इंडिया यू सी, इन इंडिया देयर वाज एन इमरजेंसी। भारत में इमरजेंसी था। जी बिल्कुल। इंडिया में इमरजेंसी था, और इंदिरा गांधी ने देखा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सिक्किम को अपना पार्ट बनाने का। सो इन अप्रैल इंडियन आर्मी टूक ओवर द सिटी ऑफ गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी कैपिटल, एंड डिसआर्म द पैलेस गार्ड। यानी वहां जो भी पैलेस में जो भी राजा के जो आर्मी वगैरह रहती थी, सबको डिसआर्म कर दिया, मतलब सबको कह दिया गया कि आप वहां नीचे गिरा दे। मतलब अब जब इंडियन आर्मी चली गई तो अब सो, और उसके बाद देखिए रेफरेंडम वाज हेल्ड इन 1970 इन विच, मतलब उसी दौर में 1976 में आप देखिए रेफरेंडम, 1975 1976 में रेफरेंडम कराया गया, और 97.5% ऑफ द वोटेड पीपल, वोटिंग पीपल वोटेड टू ज्वाइन इंडिया यूनियन। यानी टोटल ऑफ 59% वोट वो एंटाइटल टू वोट, और उसमें से आप देखिए 97% मतलब जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, वोटेड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। एज अ रिजल्ट 19, ये सब 1975 में हो रहा है इंसिडेंट, दीज ऑल थिंग्स इंसिडेंट्स आर हैपनिंग इन 1975। और आपको याद होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी। A few weeks later, on 16 May 1975, Sikkim officially 22nd states of Indian Union. इंदिरा गांधी को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, और जो वोटिंग भी हो गया, तो सिक्किम ने ऑफिशियली, भारत ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि सिक्किम जो है, नाउ इट इज नो लॉन्गर एन एसोसिएटेड स्टेट, वो अब हमारा एसोसिएटेड स्टेट नहीं है। और 36th अमेंडमेंट एक्ट पास करके इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 2A को रिपील किया, और 10th शेड्यूल को भी रिपील किया। आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल को रिपील करके मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। यस, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। दिस वॉज दी लिटिल स्टोरी, ये बहुत छोटी सी स्टोरी मैंने आपको सिक्किम के बारे में बताई है। अगर आपको इसके डिटेल के बारे में जानना है, सिक्किम हुआ और भी बहुत सारे स्टेट हैं, तो उसके लिए आपको यू हैव टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस कोर्स, और आप मेरे सब्सक्रिप्शन से, दैट इज MDYT, you can join an academic subscriptions plus course or iconic course by applying my promo code, that is MDYT or SDMD for special class. Now you see, so ye 36th Amendment Act and the monarchy was abolished. And the monarchy was abolished. And the monarchy was abolished, and Sikkim becomes now India's full-fledged state.
So the Constitution 36th Amendment Act was passed on 16th May 1975. भाई जब आप अनाउंस करेंगे तो आप कुछ करेंगे ना, तो आपने अनाउंसमेंट किया कि सिक्किम हमारा ऑफिशियल स्टेट 22 हो गया, और 36 अमेंडमेंट एक्ट उसी दौर को पास करा के पार्लियामेंट से आपने कह दिया कि ये सब रिपील कर दिया गया. सो दैट इज व्हाई यू सी, अगर आप ये नोटिस कीजिएगा तो मैंने आपको बताया था कि दिस रिपील बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट इन 1975. क्यों रिपील किया गया? क्योंकि सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा मिला था, और ये सब चाइना का भी कुछ इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल था. ओके, सो नाउ सी, तो दैट हैपेंस. दो दिस एक्ट फर्स्ट शेड्यूल which list the states and territory on India, list any change of the border and the law used to make that change, was amended and Sikkim was entered as the entry number 22. यानी ये पार्लियामेंट के पास राइट थी, और फर्स्ट शेड्यूल में अमेंड करने का राइट भी पार्लियामेंट के पास ही है. तो उसको क्या किया पार्लियामेंट ने, उसे अमेंड करके और फाइनली इसे एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट ने कि सिक्किम हैज बिकम्स इंडियाज 22nd स्टेट. यानी आप ये समझ जाइए कि 1975 तक इंडिया में केवल 22 स्टेट थे, और उसके बाद बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि रीजनलिज्म कैसे हुआ, रीजनलिज्म का कारण क्या है, और उसके लिए क्या क्या हुआ. तो आप देखिए, इसकी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे सिक्किम को, इसकी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे, इसकी वजह से तो सिक्किम हमारा सेकंड सेकंड. और इतना ही नहीं, सिक्किम को और स्पेशल स्टेटस दे दिया खुश करने के लिए. और न्यू आर्टिकल, आर्टिकल 371F, यानी ए बी सी डी ई, ये जितनी भी ए बी सी डी है, इन सब लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. और यही स्पेशल स्टेटस के लिए बिहार को के जितने भी पॉलिटिशियंस है, दे आर डिमांडिंग फॉर इट. सो इट इज नॉट सो सिंपल कि सबको ये मिल जाएगा. बहुत सारे उसके क्राइटेरियाज होते हैं जो फुलफिल करने, दैट विल ट्राई टू सी. सो एंड वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड सम स्पेशल प्रोविजंस. देखिए तो, विथ रिस्पेक्ट्स टू स्टेट ऑफ सिक्किम, विथ रिस्पेक्ट्स टू द स्टेट ऑफ सिक्किम. यानी अब देखिए, यहाँ स्टेट, यहाँ सिक्किम को हम जोड़ दिया तो ये बिकम स्टेट. नाउ इट इज नॉट अ कंट्री. जब हम यहाँ पे स्टेट को जोड़ देंगे तो इट इज नॉट अ कंट्री, इट बिकम स्टेट. ओके, और जब ये स्टेट को सिक्किम जब हमने कर दिया, तो अब देखिए इसके पीछे लॉजिक. नाउ यू सी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम. तो देन इंदिरा गांधी, देन इंदिरा गांधी डिड एवरीथिंग. इंदिरा गांधी ने क्या किया कि ये सारी चीजें कर दी. एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये देखिए, ये चीज सिक्किम को हम लोगों ने 22nd स्टेट मान लिया, सिक्किम. सो आई होप दैट टिल नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को क्लियर है. अगर ये नहीं क्लियर होगा तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स पे जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं. देयर इज नो इशू ऑन इट. ओके, सो सिक्किम को कर दिया गया. अब देखिए, नाउ अब हम लोग आते हैं, नाउ वी कम टू आर्टिकल 3. अब जब हम आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3, सो यू सी आर्टिकल 3 में क्या है कि वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. अब देखिए, आप भी यहाँ पे कंफ्यूज हो. मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि दो चीजों में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. टू थिंग्स.
यस, दो चीजों में आप प्लीज कंफ्यूज मत हो। आर्टिकल 2 के अंदर भी न्यू स्टेट की बात कर रहा है और आर्टिकल 3 के अंदर भी न्यू स्टेट की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बहुत क्लियर टर्म में बताया था कि ये 2 के अंदर न्यू स्टेट की बात कर रहा है, ये कंट्री की बात कर रहा है, फॉरेन कंट्री। सो ये बात कर रहा है एनी कंट्री, एनी फॉरेन कंट्री। और जब ये आर्टिकल 3 न्यू स्टेट की बात करेगा तो ये उन स्टेट की बात करेगा जो भारत के अंदर है, एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर बात करेंगे। यस, भारत के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। जी, या तो अब आपको समझ में आया कि हम जब एग्जिस्टिंग स्टेट की बात करें तो हम 28 स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है। और जब हम न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में बात करेंगे तो नए कंट्री की बात करेंगे, लाइक भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, जो भी न्यू स्टेट हो हमारा, हम उसमें उसकी बात करेंगे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं तो उसमें भी न्यू स्टेट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट है, यहां भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है। तो वहां कंट्री और यहाँ पे अपना एग्जिस्टिंग स्टेट। सो यू सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशंस ऑफ areas, boundaries or name change of existing state, parliament may by law do it. May by law can make it. Yes, may by law can make it. You see, parliament may by law can make it. ओके okay. अब मे बाई लॉ का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, लॉज अंडर इट्स एम्बिट। तो एम्बिट का मैंने वहां डेफिनेशन बताया था कि एम्बिट का मतलब आर्टिकल 2 के अंदर एम्बिट क्या कह रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आप देखें इंडियन कॉनोटेशंस, इंडियन कंसिक्वेंस, अगर ठीक उसी तरह से आप देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो न्यू स्टेट का मतलब है कि भारत में, इंडिया में जो स्टेट्स है उसको तोड़ा जा सकता है, ये स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। यानी ये 28 स्टेट्स आया है तो आप समझिए कि पहले ये, अभी तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, 1975 तक इंडिया में 22 स्टेट्स थी। तो ये 28 स्टेट कैसे हुए? तो इसी 22 को तोड़ तोड़ के हमने 28 किया है। ओके, इसी 22 को तोड़ तोड़ के हमने 28 किया है। यस, इसी 22 को। तो अब देखिए, Parliament may by law can make it. You see, number one, formation of new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part of a state or by uniting any territory as a part of any state. यानी या तो वो दो या मोर स्टेट्स को फॉर्म करने में, न्यू स्टेट कैसे हो सकता है? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, जो स्टेट है उसको सेपरेट करना, या उसको दो या दो से अधिक स्टेट को यूनाइट करना, या एक यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट्स को यूनाइट करना, एनी पार्ट ऑफ स्टेट को यूनाइट करके एक साथ जोड़कर हम एक नया स्टेट बना सकते हैं। और ये राइट पार्लियामेंट के पास है। दिस राइट इज गिवन टू द पार्लियामेंट। ये राइट आपके पास भी नहीं है और ये राइट मेरे पास भी नहीं है। ओके, दिस राइट इज प्योरली गिवन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही ये राइट है, और बिकॉज द पार्लियामेंट हैज अ राइट, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। हमारे पार्लियामेंट के पास बहुत शक्ति है, but ultimately it's check and balance between the state.
सो स्टेट सेकेंड, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब किसी भी एरिया को कैसे इंक्रीज करेंगे? अगर मान लो कि इफ दिस इज द स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके एरिया को कैसे इंक्रीज करो? तो दूसरे के स्टेट के एरिया को इसके अंदर आप अडॉप्ट करोगे तभी ना। और ये भी पार्लियामेंट कर सकता है। आप इमेजिन करो आप इमेजिन कर लो कि पार्लियामेंट कैन डू दिस ऑल्सो। सेकेंड, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी भी एरिया की बॉर्डर को डिमिनिश कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये भी पार्लियामेंट कर सकता है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ये जो बाउंड्री है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बाउंड्री, ये जो टच कर रही है, इसको भी खत्म कर सकता है। yes it can alter the boundaries of any state। ये तो डिमिनिश का मतलब है कि किसी के एरिया को खत्म कर देगा। अल्टर का मतलब है उसको चेंज कर देगा। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यस, किसी स्टेट का या उसके कैपिटल का। देखिए दो चीज याद रखें, अगर किसी के स्टेट का या कैपिटल का नाम अगर चेंज करना है, if they want to change their name, the name and their capital, state capital and state name can be changed only by parliament, only by parliament। ये जान जाए, यानी पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो कि उसके नेम को चेंज कर दोगे और उसके मतलब पार्लियामेंट कैन डू ऑल दिस। इन द क्रक्स यू सी ऑल द पावर हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट। और आप देखिए बिकॉज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स 22 स्टेट से हमने क्या किया, 28 स्टेट्स कर दिया। इतना ही नहीं, दिस इज नॉट दिस मच। अगर आप देखेंगे तो स्टेट को जो डिवाइड करना है, स्टेट्स को ऐड करना है, ये डिमांड जो है ये आज का नहीं है। अगेन दिस इज अ ब्रिटिशर्स। इसके अगर बैकग्राउंड में जाएंगे ना रीजनलिज्म के, तो दिस यू विल सी दैट इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के टाइम में ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, सो नाउ सी, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टेट्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं पार्लियामेंट कर सकती है। सो इन दिस केस वी कैन से इंडिया इज a unitary state, yani here the state has only formal, कहा जाए ना कि बस फॉर्मली हम आपसे पूछ रहे हैं स्टेट से, बट the full authority lies with the center। Full authority lies with the center। Full authority lies with the center। Okay, full authority will lies to the center, यानी स्टेट का कोई रोल नहीं रहेगा, जो भी करेगा वो सेंटर ही करेगा और सेंटर अपने अकॉर्डिंग करेगा। सेंटर विल डू इट अकॉर्डिंगली what they feel, center will do it accordingly what they feel। So that is why here India
act as a, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि सेमी फेडरल स्टेट है, इंडिया एज अ सेमी फेडरल स्टेट. देन यू सी, अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट के प्रोसीजर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन. प्रोसीजर फॉर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हाउ पार्लियामेंट कैन डू इट. हाउ पार्लियामेंट कैन डू इट, यानी स्टेट को डिवाइड करने के लिए पार्लियामेंट कैसे करेगा. ओके, पार्लियामेंट कैसे करेगा, हाउ कैन इट डू इट. और इस सेंस में अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू सी द प्रोसीजर ऑफ फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन. प्रोसीजर का मतलब है पार्लियामेंट कैसे पास करेगा, क्या पास करेगा फिर. तो आपको देखिए मैंने पहले बताया ना, ये जितने भी फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट. सेकंड, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any states and alter the name of any state. ये सारी चीजें पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा. You see it has been written parliament may by law, so this is called according to law. और ये लॉ क्या है, that is what we'll see कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे. अभी हम इसके पास्ट में नहीं जाएंगे, यानी आर्टिकल 3 में जो लिखा गया है उसका प्रोसीजर क्या है, दैट इज व्हाट वी आर. सिंपल टर्म्स में हम कहें तो आर्टिकल 3 में जो अभी मैंने आपके थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, उसके अंदर जो हम प्रोसीजर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर क्या है. जी हाँ, उसके प्रोसीजर को वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. नाउ सी व्हाट आर द प्रोसीजर. नंबर 1, no bill for the purpose can be introduced except on the recommendation of president. यानी इसके अंदर सुप्रीमेसी प्रेसिडेंट के पास है. Why? Because here we say president is the head of the state. हमारे देश का प्रमुख प्रेसिडेंट है, तो देश का प्रमुख प्रेसिडेंट है, यूनियन का प्रमुख प्रेसिडेंट है, तो स्टेट में कुछ भी होगा सबसे पहले प्रेसिडेंट को नोटिफाई किया जाएगा. दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी इंटरव्यू. ये यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि why when a bill introduced in the parliament for under article 3, whatever be the condition mentioned, it can be introduced only with the prior permission of the president. Why? क्यों राष्ट्रपति के कहने पर ही अनुच्छेद 3 के अंदर जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो बिल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन, इसके रीजन आप बताएं. इसके रीजन आप बताओ. यस, यू जस्ट टाइप इन अ चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स. हाँ, बट अब मैं आंसर बता दूंगा तो कमेंट बॉक्स में तो आप लोग सब कुछ सही बता दोगे, जैसे कि मैंने आंसर बता दिया है. क्यों प्रेसिडेंट्स को ये बिल सबसे पहले प्रेसिडेंट के परमिशन से ही लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आइदर हाउस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ. क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, और आप किसी भी स्टेट को तोड़ने जा रहे हो या जोड़ने जा रहे हो या हटाने जा रहे हो, यू हैव टू टेक परमिशंस. दैट टाइप ऑफ बिल मस्ट बी टेकन परमिशंस विद द प्रेसिडेंट. सो नो बिल फॉर द पर्पस कैन बी इंट्रोड्यूस, मतलब ऐसा कोई भी बिल जो आर्टिकल 3 के अंदर जो भी क्लॉज दिए गए हैं उसको आप लाना चाहते हैं, वो प्रेसिडेंट्स के बिगर परमिशन से आप नहीं ला सकते. नाउ the president shall have before giving his recommendation
refers the bill to the legislature of the state, which is going to be affected by the change proposed in the bill, for expressing its view on the change within the period specified by the president. Within the period specified by the president. यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमारे संविधान सभा के मेंबर्स ने वो छोड़ दिया था कि आने वाले फ्यूचर में इसे डिसाइड किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट, और थ्रू अमेंडमेंट पार्लियामेंट कैन डिसाइड इट. अब देखिए, प्रेसिडेंट को भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. यस, प्रेसिडेंट ऑल्सो हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इफ आई एम गोइंग टू चेंज द नेम, एरिया, बाउंड्री, डिमार्केट, अल्टर व्हाट इज बीइंग मेंशन अंडर आर्टिकल 3. जैसे आर्टिकल 3 के अंदर आप देखिए, formation of new state, separation of territory from any states, uniting two or more states, part of a state unit, uniting any territory as a part of any state, increasing the area of any state, diminishing the area of any state, altering the boundary of any states, altering the name of any state. ऐसे कंडीशन में अगर ये सरकार कुछ भी करती है, यानी प्रेसिडेंट कुछ भी करते हैं, तो प्रेसिडेंट को पहले उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वो बिल को भेजना पड़ेगा कि आप अपना विचार बता दे. स्टेट अपना, दे हैव द राइट टू से देयर व्यूज. बट ये व्यू हम माने, आपके व्यू हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. तब आपने भेजा ही क्यों भाई? जब आप हमारे व्यूज को मानेंगे ही नहीं, when you will not accept my views, then why you have sent the bill? This is only formalities. That state should know कि yes, the center is going to change their name, center is going to change their boundary, or center is altering, merging the state, or center is demarcating the state, or center is dividing the state. तो ये उनके जानकारी के लिए किया जा रहा है. उसके लिए आप कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, अगेन इट इज अप टू द सेंटर कि आप. अब आप देखिए ना कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने तो मायावती के टाइम में उन्होंने स्टेट को 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात की थी. 4 पार्ट में हरित प्रदेश क्या क्या था, तो सेंटर ने उसकी बातों को नहीं माना. सेंटर एकदम साइलेंट है, और आज भी वो बिल बंद बस्ते में बंद पड़ा हुआ है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. कोई इसको जरूर, कोई, nobody is touching that bill and nobody is looking what is happening. किसी को कोई मतलब नहीं उस बिल से. अब देखिए, तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो स्टेट अच्छा, उसके बाद कोई टाइम बाउंड नहीं है. प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट प्रेसिडेंट जब देंगे ना स्टेट को कि आप इस बिल को नोटिस कीजिए, रिकमेंडेशंस जो है इंट्रोड्यूस करने से पहले हम बिल स्टेट को देंगे कि यू जस्ट गिव अ व्यू. इसमें the president will give certain time and that time is not specified. अगर हम ऐसा कहें कि 15 दिन प्रेसिडेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. वो महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है. तो इसमें कोई आई हैव नो, मतलब हमारा कुछ ऐसा पर्सनल नहीं है, या हमारे संविधान में ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं दिया हुआ कि इसी टाइम में आपको देना. नो, नॉट एट ऑल. ये जान के रखें. तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट एक टाइम देते हैं, इस टाइम में आपको बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना है. चेंज जो प्रपोज कर रही है सेंटर, वो चेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट के पास भेजना है. दैट दे आर गोइंग टू सेंड टू द प्रेसिडेंट. और यू सी which is going to affect by the change proposed in the bill, for expressing its views on the change within the period specified by the president. यानी उनको एक पीरियड दिया गया है, उसी पीरियड में उनको स्पेसिफाई करना है. अगर उस पीरियड में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, तो वी विल से दैट कि यस, द बिल हैज बीन, दे हैव गिवन द. अगर नहीं किया तो इसके आगे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं. चूंकि हमारे टाइम खत्म हो चुका है और हमारा टाइम खत्म हो रहा है,
So since 1 hour is allotted for me, 1 hour की class लेनी है, तो I have completed my 1 hours. So what we will do, we'll continue this topic in next class, next day, so that excuse me, so that we'll continue in the next class, and I will again, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से चालू करूंगा प्रोसीजर्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। फिर से मैं एक बार समझाऊंगा कि इसको कैसे किया जाए। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ओके देन, बाय।